Okay, students, let us solve a question which has appeared most of the times in university exams on cam and profile. Right, we have to draw a cam. So let us go through the through the question and find out what exactly is given and how should we approach. Construct the profile of the cam to suit the following specification. Okay, we have to draw a profile. Right, construct the profile of the cam. Camshaft diameter is 40 mm. The very first data is camshaft diameter. It is given as 40 mm. Right? Least radius of the cam. Now this is the important data. Least radius of the cam. We know that the least radius, that means it is nothing but base circle. Right? So base circle radius is given, that is equal to 25 mm. So this was the second data. Diameter of the roller, that means the type of follower is roller. Right? So we can say that the type of follower is roller follower. Right? And the diameter of roller is given. Diameter of roller is 25 mm. Diameter of roller is given as 25 mm. Angle of lift. Now angle of lift is the angle turned by the cam during which the follower lifts itself upwards. Right? That means it is nothing but outstroke. We know that outstroke is represented by theta O, that is given as 120 degree. Okay, so the first 120 degree is angle of lift, it is 120 degree. Angle of fall is 150 degree. Angle of fall is that angle turned by the cam during which the follower return to its original position, that is it falls down. Right? And that is represented by theta r. Theta r is given as 150 degree. Right? So that was second thing. Lift of the follower is 40 mm. Now lift of the follower, that means how much distance does the follower travels. Right? That is lift of the follower, and we know that lift of the follower is nothing but stroke. Lift of the follower, that is we denote it by capital S. S equals to 40 mm. And number of pauses, next data is number of pauses are 2. There are 2 pauses of equal interval between the motions. There are 2 pauses. Right? Now 2 pauses, हो सकता है कि पहले फॉलोअर ऊपर जाए, फिर पॉज ले, फिर नीचे आए, फिर पॉज ले, साइकिल कंप्लीट. राइट ना, एक साइकिल में 2 पॉज. और क्या कहता है कि देयर आर 2 पॉजेस ऑफ इक्वल इंटरवल. दोनों भी पॉजेस इक्वल हैं, मतलब कि एंगल ड्यूरिंग द पॉज, मतलब कि हम ड्वेल की बात कर रहे हैं. राइट? सो ड्वेल ये सेम है और कितने हैं 2. राइट? सो क्या मैं कह सकता हूं कि देयर आर 2 ड्वेल्स, और दोनों ड्वेल्स कितने हैं 360 माइनस ऑफ 150 प्लस 120. राइट ना, 120 डिग्री और 150 डिग्री का हमारा आउटस्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक है. तो 360 माइनस ऑफ जो हमारा आउटस्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक है, बचा हुआ पोजीशन तो ड्वेल का होगा. सो दिस इज मेरे ख्याल से 90 डिग्री. राइट ना, 150 आणि 120, 150, 60, 70, 270, 360 minus 270, 290. So there are 2 duels. So can I say that each duel is of 45 degree? Right now there are 2 duels of 90 degree and they are of equal intervals. So we can say that the duels are of 45 degree. Right? Okay. Now during the lift, the motion is simple harmonic motion. So the lift or outstroke, the motion of the follower during outstroke is simple harmonic motion. Right? This data we get. And
During the fall, the motion is uniform acceleration and deceleration. During fall, that means during return stroke, the return stroke says that the type of motion of the follower during return stroke is uniform acceleration and deceleration. Okay, anything else? The speed of the camshaft is uniform. Speed of the camshaft is uniform, so we don't have to do anything with the speed of the cam. All we have to relate with all our diagram is with the motion of the follower, and the motion of the follower during outstroke and return stroke is given. The speed of the camshaft is uniform. The line of the stroke of the follower is offset. Now the follower is offset by an amount offset of 12.5 mm from the center of the cam. Now this is all the given data and we have to draw the profile of the cam, right? और अगर हमारे पास सभी डेटा है तो अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है. Let us wipe out the question so that एक स्पेसिफिक जगह है मेरे पास and we can draw the profile of the cam, right? Now during outstroke, simple harmonic motion. During return stroke, uniform acceleration and deceleration. Lift stroke is of 40 mm, right? And okay, this much. The outstroke is of 120 degree, then dwell of 45 degree, then return stroke of 150 degree और उसके बाद वाला dwell, right? तो अब हम ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप सभी को मालूम है कि एंगल टर्न बाय द कैम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं हम द टोटल लिफ्ट स्ट्रोक, राइट? सो हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की टोटल लेंथ. अगर हम स्केल कंसिडर करें, स्केल से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 डिग्री, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर ये टोटल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? सो एक्स एक्सिस की टोटल जो लेंथ होगी वो 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा और जो वाई एक्सिस की लेंथ होगी दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द टोटल लिफ्ट, दैट इज स्ट्रोक. तो ये जो टोटल होगा वो कितना होगा? 4040 mm, राइट? तो अब हम इसको रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे. हमें मालूम है कि दिस मच हाइट इज ऑफ स्ट्रोक एस एंड एस इज 40 mm, राइट? ओके. और जो हमारा ये लेंथ है, ये तो हमने स्केल कंसीडर किया कि 20 डिग्री इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, दैट मींस टोटल लेंथ टू रिप्रेजेंट 360 डिग्री विल बी ऑफ 18 सेंटीमीटर. ये टोटल जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर. इनिशियल पॉइंट को नाम दे देंगे हम ओ. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस मोशन ऑफ द फॉलोअर में कैसे ड्रॉ करना है इसका पिछले पार्ट्स में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखा है. हर एक टाइप को हमने अच्छे से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है, राइट? सो आई होप कि आपने वो वीडियोस देखे हैं. नहीं तो एक बार फिर देखिए. हम इसे फिर भी अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट? ओके. नाउ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एक्स एक्सिस पे हम हमारा कैम का रोटेशन डिनोट करते हैं. कैम का रोटेशन चालू होता है आउटस्ट्रोक 120 डिग्री से. अब आउटस्ट्रोक अगर 120 डिग्री है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 120 डिग्री लीनियर स्केल में 6 सेंटीमीटर होगा. तो मैं पहले 6 सेंटीमीटर को आउटस्ट्रोक थीटा ओ बोल दूंगा, राइट? उसके बाद पॉज दैट इज ऑफ 45 डिग्री. अगर 45 डिग्री है पॉज तो 45 डिग्री का ड्वेल है, राइट? तो ड्वेल की टोटल लीनियर स्केल में लेंथ कितनी होगी? 45 डिग्री मतलब कि each सेंटीमीटर, 20 डिग्री को 1 सेंटीमीटर मतलब 40 डिग्री को 2 सेंटीमीटर और 5 डिग्री को 2.5 mm, राइट ना? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ड्वेल की लेंथ होगी वो होगी 45 डिग्री, दैट इज 22.5 mm, राइट? नेक्स्ट return stroke is of 150 degree. So draw the return stroke. The return stroke of 150
डिग्री, दिस इज रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर एंड इट इज ऑफ 150 डिग्री। लेकिन हमें तो लेंथ लीनियर स्केल में पुट करना है, तो 150 डिग्री कितने सेंटीमीटर से डिनोट होगा? 150 डिग्री विल बी डिनोटेड बाय ऑफ कोर्स 20 डिग्री रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 150 डिग्री विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 7.5 सेंटीमीटर। जो ये टोटल लेंथ है वो 7.5, थीटा ओ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है हमने, विच इज रिप्रेजेंटिंग 120 डिग्री। और इसके बाद अगला फिर से बचा हुआ जो ड्वेल है, that dwell is again the same as of the previous dwell, that is 45 degree. 45 degree will be represented by 2.25 centimeter, right? Now 2 centimeter and 2.5 mm, right? That is 22.5 mm. So अब हमारा पूरा 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो टोटल है, क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो लेंथ हमने ऊपर ड्रॉ की है, दैट गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर, राइट? ओके, चलो यहां तक तो आ गए। नाउ आउटस्ट्रोक जो 120 डिग्री का है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट कर देंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कौन सी मेथड यूज करते थे? जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के ऊपर जो टोटल स्ट्रोक है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल कंसीडर करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे। दैट मीन्स अगर स्ट्रोक हमारा 40 सेंटीमीटर है तो 40 mm है, तो 40 mm इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब कि यहां कहीं उसका 0 से इस पोजीशन पे O बोल देंगे हम, दैट इज सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। O पॉइंट पे दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम 0 हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिलेगा, और उसे हम सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 20 mm कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट? अब इस सेमी सर्कल को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट ना? आप 8 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में भी कर सकते हो। रिमेंबर, सेमी सर्कल हैज टू बी डिवाइडेड इनटू इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, राइट? लेकिन अगर 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 180 डिग्री है। 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 विल गिव मी 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री का एक आर्क और 30 डिग्री का आर्क ड्रॉ कर लेंगे हम। 30 डिग्री और ये 30 डिग्री तो है ही, राइट ना? 1 2 3 4 5 6 हमने सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट इज ऑफ 30 डिग्री। इन्हें कुछ नाम दे देंगे, सेम पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? नाउ अगर हमने सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो हमारा आउट स्ट्रोक की लेंथ है उसे भी सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, राइट? इसे 6 में किया है तो आउट स्ट्रोक को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो आउट स्ट्रोक था वो हमारा टोटल 6 सेंटीमीटर का था, तो 6 सेंटीमीटर को अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। 3 4 5 और ये हमारा 6, राइट? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका। तो 6 पार्ट्स जो जितने भी हमारे पहले हम नेम दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? अब हर एक डिवीजन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट? नाउ जो हमारे डिवीजन ऑन सेमी सर्कल है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जैसे कि वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 और 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है, 3 से यहां इंटरसेक्ट कर रही है, 4 से यहां, 5 से यहां, 5 से वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ किया है, सो 5 से ये, 5 और 6 से यहां, राइट? तो लेट मी गिव नेम्स टू दीज पॉइंट्स। इसे स्मॉल पॉइंट
ए बोल देंगे, स्मॉल बी से स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ, राइट। नाउ फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, राइट। सो वी हैव अ कर्व फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। उसके बाद क्या हम कह सकते हैं जीरो से हमारा आउटस्ट्रोक चालू हुआ था और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, मतलब कि 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम, कैपिटल ए नाम दे देंगे, कैपिटल ए पे हमारा आउटस्ट्रोक कंप्लीट हुआ, राइट। ए से इसे नाम दे देंगे पॉइंट बी, कैपिटल ए से बी, दैट इज नेक्स्ट 45 डिग्री हमारा ड्वेल पोजीशन था, मतलब कि फॉलोअर रेस्ट में था। और अगर फॉलोअर रेस्ट में था तो ऑब्वियसली जो हमारा कर्व है वो यहां से ऐसे ही रहेगा, राइट। उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक इज ऑफ 150 डिग्री, लेकिन रिटर्न स्ट्रोक इज having uniform acceleration and deceleration, ना, uniform acceleration and retardation type of motion. So अब हम रिटर्न स्ट्रोक में कौन सी मेथड यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की? रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन वाली, राइट। कैसी थी वो मेथड? जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है उसे इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, राइट। नाउ इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिटर्न स्ट्रोक हमारा कितना था? रिटर्न स्ट्रोक वाज ऑफ 7.5 mm, राइट ना, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर मतलब कि 75 mm है, राइट। रिटर्न स्ट्रोक हमारा 75 mm है। 75 mm को हम अगर 6 पार्ट्स में ही इक्वली डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट विल बी 6 1 जा 6, 1 5, 6 2 जा 12, 3 0, 12.5 का, राइट ना। तो हर एक डिवीजन जो होगा वो 12.5 mm का होगा, राइट। सो 12.5 will give me 25, ओके। 12.5 mm का लेंथ का हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रिटर्न स्ट्रोक को। सो 12.5, 12.5, 12.5 mm, 12.5 mm, 12.5 mm और ये हमारा 12.5 एग्जैक्टली यही आएगा जहां हमारा रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, राइट। नाउ इन्हें हम नाम दे देंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट को 0 डैश बोल देंगे, ओके, 6 डैश बोल देंगे। उसके बाद 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और फाइनली 0 डैश, उसे पॉइंट नाम सी दे देंगे। बी टू सी इज योर रिटर्न स्ट्रोक। हर एक पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 3 डैश, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 2 डैश, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 1 डैश। तो 1 2 3 4 5 6 रिटर्न स्ट्रोक को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब इसके बाद मेथड कैसी है? जो मिडल वर्टिकल लाइन है उस मिडल वर्टिकल लाइन को सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब मिडल वर्टिकल लाइन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल लाइन्स है। तो ये 3 डैश के ऊपर से जो वर्टिकल लाइन गई है दैट इज द मिडल वर्टिकल लाइन। तो मिडल वर्टिकल लाइन हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। सिंस हमने रिटर्न स्ट्रोक को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वर्टिकल लाइन को भी हम 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब 40 mm को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच डिवीजन विल बी ऑफ 6 6 36 36 40 6 6 36, ओके, 6.6666 मतलब 6.67, राइट। हर एक डिवीजन विल बी ऑफ 6.67 mm। सो 6.67 mm 1 2 3 4 5 और 6 हमारे कंपास में 6.67 mm या फिर स्केल से मेजर करके हम ये डिवीजन, हर एक डिवीजन विल बी ऑफ 6.67 mm, राइट। उन्हें हम नाम दे देंगे से 1 2 3 4 5 and 6, right? Now from point, this point, यहां से हम 5 को ज्वाइन करेंगे, 4 को ज्वाइन करेंगे और जहां पे हमारा रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है वहां से हम बाकी बचे हुए पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, 3 को, 2 को और 1 को, राइट। नाउ
पॉइंट सी के ऊपर, इस पॉइंट से जो 1 पॉइंट को जोड़ रही है लाइन, वो जहां 1 डैश के लाइन को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज वन ऑफ माई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहां से तो जो पॉइंट 2 को जोड़ रही है वो 2 नंबर की वर्टिकल लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज माई वन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 3 नंबर की लाइन, 3 नंबर की वर्टिकल लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है, दैट इज वन ऑफ माई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 4 डैश के ऊपर से लाइन 4 नंबर की ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज वन ऑफ माई पॉइंट्स। अगेन ये एक पॉइंट और फाइनली मुझे ये एक पॉइंट मिल रहा है, तो हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे जो इन पॉइंट्स में से पास हो रहा हो, राइट। सो दिस इज द कर्व। इन्हें हम नाम दे देंगे एफ डैश, ई डैश, डी डैश, देन सी डैश, बी डैश एंड फाइनली ए डैश, राइट। और उसके बाद का अगला जो कर्व है वो तो हमारा ड्वेल ही है, राइट। सो हियर वी कंप्लीट आवर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, राइट। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फ्रॉम दिस कर्व, राइट। ये हमारा जो कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। दिस हैज टू बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच कर्व। ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, राइट। नाउ इसे हम पूरे डायग्राम को नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। Now we will move forward and draw the cam profile. कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेस सर्कल, और बेस सर्कल जो है उसका रेडियस है 25 mm। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लोकेट करेंगे, से पॉइंट दिस वन। इस पॉइंट को नाम दे देंगे से पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे टू रिप्रेजेंट द बेस सर्कल। सो दिस इज द बेस सर्कल। बेस सर्कल का रेडियस कितना है? 25 mm, राइट। सो दिस इज योर बेस सर्कल। बेस सर्कल का रेडियस 25 mm है, राइट। उसके बाद सिंस टाइप ऑफ फॉलोअर ये रोलर फॉलोअर है, और जब भी हमें रोलर फॉलोअर होता है तो हमें प्राइम सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। मतलब कि हमें सबसे पहले लोकेट करना है ट्रेस पॉइंट को। तो पहले प्राइम सर्कल का हम पहले रेडियस ढूंढ लेंगे। प्राइम सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? प्राइम सर्कल रेडियस will be equal to radius of base circle 25 mm plus of रोलर का डायमीटर कितना है? रोलर डायमीटर ऑफ रोलर इज 25 mm। तो रेडियस ऑफ द रोलर कितना हो जाएगा? 12.5 mm। तो प्राइम सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 25, 26, 27, 27.5 mm will be the radius of प्राइम सर्कल। तो अब हम ड्रॉ करेंगे प्राइम सर्कल विथ सेम सेंटर बट रेडियस विथ प्राइम सर्कल ड्रॉ करेंगे। प्राइम सर्कल का रेडियस कितना निकाला हमने? 27 प्राइम सर्कल ऑफ 27.5 mm, राइट। सो अब हमें प्राइम सर्कल मिल चुका है, लेकिन अभी भी हमें एक सर्कल और ड्रॉ करना है। क्या कहा है कि द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 12.5 mm। नाउ फॉलोअर ऑफसेट है, इस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेंशन नहीं किया है तो हम क्या कहते हैं कि फॉलोअर हम हर बार राइट साइड की तरफ ऑफसेट करेंगे, राइट। सो द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 12.5 mm। फॉलोअर अगर 12.5 mm पे ऑफसेट है तो जो वर्टिकल डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर से 12.5 mm का डिस्टेंस लेंगे हम। से दिस इज 12.5 mm, और वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। नाउ अब
with a radius equal to 12.5 mm. ओके, नाउ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ट्रेस पॉइंट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज योर ट्रेस पॉइंट, और ट्रेस पॉइंट के ऊपर हमारा सर्कल लाई करेगा. किसका सर्कल है ये? रोलर का सर्कल. सो दिस इज योर रोलर फॉलोअर, और ये हमारा ट्रेस पॉइंट है. नाउ इस पॉइंट को नाम दे देंगे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट 0 है, तो ये 0 और O को हम ज्वाइन कर लेंगे. 0 to O हमने ज्वाइन कर दिया, राइट. नाउ एक सर्कल हम और ड्रॉ करेंगे विथ सेम सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू 12.5 mm, एंड दैट सर्कल इज योर, ये हमारा सर्कल, और ये सर्कल हमारा ऑफसेट सर्कल है, राइट. सो नेम दैट सर्कल एज ऑफसेट सर्कल, राइट. नाउ गो फॉर द एंगल्स. 120 डिग्री इज आवर आउटस्ट्रोक. आउटस्ट्रोक को हम, अगर हमें नहीं मेंशन किया है तो हम अज्यूम करते हैं कि द कैम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. दैट मीन्स द एंगल्स आर टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट की तरफ हमें ड्रॉ करना है 120 डिग्री. द आउटस्ट्रोक इज ऑफ 120 डिग्री. सो हम पहले आउटस्ट्रोक ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री का, राइट. सो 120 डिग्री कहीं पर ये 90 होगा. 120 डिग्री मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं हमारा टोटल 120 डिग्री आएगा. दैट इज आउटस्ट्रोक थीटा ओ. उसके बाद 45 डिग्री का ड्वेल है, तो 45 डिग्री हमारा कहीं इतना आ जाएगा. दिस इज ड्वेल पोजीशन, राइट. तो हमारा आउटस्ट्रोक 0 से चालू हुआ और कंप्लीट हुआ कैपिटल ए पे, तो इस पॉइंट को हम कैपिटल ए नाम दे देंगे, राइट. उसके बाद ए टू बी हमारा ड्वेल है, तो इस पॉइंट को हम नाम बी दे देंगे. बी के बाद एग्जैक्टली 150 डिग्री जो है वो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है. तो 150 डिग्री जब हम मेजर करेंगे तो वो आता है अराउंड, कहीं तो यहाँ आएगा. सो बी टू सी जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री, और कंप्लीट हो रहा है पॉइंट सी के ऊपर हमारा रिटर्न स्ट्रोक. सो दिस एंगल, इस ओ पॉइंट को हम निकाल देते हैं. दिस एंगल इज रिटर्न स्ट्रोक, और उसके बाद बचा हुआ जो 45 डिग्री है दैट इज हमारा ड्वेल, राइट. नाउ आउटस्ट्रोक 120 डिग्री है. ये जो टोटल एंगल आउटस्ट्रोक है 120 डिग्री. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पे आउटस्ट्रोक को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो टोटल 120 डिग्री का आउटस्ट्रोक है उसे भी हम कैम प्रोफाइल डायग्राम में 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और 6 पार्ट्स में अगर हम 120 डिग्री को डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज ऑफ 20 डिग्रीज, राइट. तो अब हम इसे रेफरेंस पॉइंट रख के हर एक डिवीजन मार्क करेंगे ऑफ 20 डिग्री. तो हमारे जो हमारा डी है दैट इज प्रोटेक्टर, उससे हम 20 डिग्री मार्क करेंगे और पॉइंट्स मार्क करेंगे प्राइम सर्कल के ऊपर. अगर नाइफ एज होता तो हमारा प्राइम सर्कल और बेस सर्कल तो सेम होता, राइट ना. तो हम उस केस में पॉइंट्स मार्क करते थे बेस सर्कल के ऊपर, लेकिन यहाँ पॉइंट्स कहाँ करना है मार्क? प्राइम सर्कल के ऊपर. सो 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट ना. 1 2 3 4 5 and 6 आउटस्ट्रोक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. सिमिलरली जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, रिटर्न स्ट्रोक, ये जो रिटर्न स्ट्रोक है ये 150 डिग्री का है. 150 डिग्री को हम अगेन 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट कितना आ रहा है हमारा 150 डिग्री का 6 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो अराउंड 22.5 डिग्रीज, राइट. सो हम डिवाइड करेंगे 150 डिग्री को 22.5 डिग्रीज में. सो 22.5 22.5 22, उसके थोड़ा बढ़ा लेंगे. 22.5 फर्स्ट, 22.5 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट. नाउ इन्हें हम नाम दे देंगे ना. रिमेंबर ये जो हमने डिविजन्स मार्क की हैं ये आर टू बी मार्क्ड ऑन प्राइम सर्कल. इन्हें हम मार्क करेंगे प्राइम सर्कल के ऊपर. इन्हें नाम दे देंगे 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5 एंड 0.6, 6 पॉइंट और ए पॉइंट, यहाँ भी 6 पॉइंट और ए पॉइंट हमारा सेम है. सिमिलरली बी पॉइंट एंड 6 डैश आर सेम, देन 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश एंड फाइनली सी पॉइंट एंड 0 डैश आर सेम, राइट. और उसके बाद का पोर्शन तो हमें मालूम है इट इज ड्यूअल, राइट. नाउ अब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट 1 से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे विच इज टेंजेंशियल टू द ऑफसेट सर्कल. रिमेंबर, अगर नाइफ एज फॉलोअर होता तो हम इस पॉइंट को सॉरी ऑफसेट फॉलोअर ना होता, मीन्स ऑफसेट अगर ना होता तो पॉइंट्स को हम सीधा सेंटर से ज्वाइन करते हैं. लेकिन सिंस ऑफसेट है तो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विथ अ लाइन विच इज टेंजेंशियल टू द ऑफसेट सर्कल. तो पॉइंट 1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल और उसे एक्सटेंड कर देंगे. पॉइंट 2 से एक लाइन ज्वाइन करेंगे टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल और उसे एक्सटेंड कर देंगे. पॉइंट 3 से एक लाइन टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल, उसे एक्सटेंड करेंगे. 4 से एक लाइन टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल, एक्सटेंड कर देंगे. 5 से एक लाइन टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल, एक्सटेंडेड. 6 से एक लाइन टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल, एक्सटेंडेड, राइट. सिमिलरली 6 डैश से एक लाइन टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल, एक्सटेंड कर देंगे. 5 डैश से एक लाइन टेंजेंशियल टू ऑफसेट सर्कल, एक्सटेंड कर देंगे. 4 डैश से टेंजेंशियल लाइन, एक्सटेंड करेंगे. 3 डैश से टेंजेंशियल लाइन, एक्सटेंड करेंगे. 2 डैश से एक टेंजेंशियल लाइन, एक्सटेंड कर देंगे. 1 डैश से टेंजेंशियल लाइन, एक्सटेंड कर देंगे. और 6 डैश से टेंजेंशियल लाइन, एक्सटेंड कर देंगे. एक्सटेंड कर देंगे भाई. ओके, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है एक्सटेंड करने की, सो हम छोटा भी कर सकते हैं. इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर भी रहने दीजिए. ओके, नाउ अब हमें करना है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से जो हमारे ट्रेस पॉइंट हैं उन ट्रेस पॉइंट्स को कैम प्रोफाइल डायग्राम पर शिफ्ट करना है. मतलब कि 1 पॉइंट से स्मॉल ए तक का डिस्टेंस लेंगे, कैम प्रोफाइल डायग्राम पर आएंगे, पॉइंट 1 पे रख के स्मॉल ए मार्क करेंगे तो हमें स्मॉल ए कहीं पर यहाँ मिल जाएगा. सिमिलरली 2 पॉइंट पे रख के बी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे. 2 पॉइंट पे रख के हम बी पॉइंट को लोकेट करेंगे, हमें स्मॉल बी मिल जाएगा. सिमिलरली 3 टू सी, 3 पे रख के हम सी मार्क कर लेंगे, हमें सी मिल जाएगा. हमें डी भी मिलेगा, हमें ई पॉइंट मिलेगा और फाइनली एफ भी मिलेगा, राइट. सो बी, दिस इज पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ. नेक्स्ट हमारा जो रोलर है, राइट ना, इस रोलर का डायमीटर कितना है 25 mm, रेडियस ऑफ द रोलर कितना है 12.5 mm. तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस रोलर को हम ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट पर जो हमारा ट्रेस पॉइंट मिला है, विथ पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 12.5 mm. ड्रॉ द रोलर, दैट इज इट्स रेडियस शुड बी 12.5 mm. रोलर यहाँ भी आ जाएगा 12.5 mm. विथ सेंटर सी ड्रॉ द रोलर, विथ सेंटर डी ड्रॉ द रोलर, विथ सेंटर ई ड्रॉ करिए रोलर और एफ पॉइंट को भी सेंटर रख के रोलर ड्रॉ करेंगे, राइट. सिमिलरली ड्वेल पोजीशंस का भी बी टू एफ डैश, बी पॉइंट से एफ डैश हम लोकेट करेंगे तो हमें एफ डैश कहीं यहाँ मिलेगा, हम रोलर ड्रॉ कर लेंगे विथ 12.5. सिमिलरली 5 डैश टू ई डैश, 5 डैश टू ई डैश, पॉइंट ई डैश मिलेगा, ई डैश लोकेट करो, रोलर ड्रॉ करो. सिमिलरली 4 डैश टू डी डैश, 4 डैश पे रख के डी डैश लोकेट करो, रोलर ड्रॉ करो. उसके बाद सी डैश लोकेट करो, रोलर ड्रॉ करो. उसके बाद बी डैश लोकेट करो, रोलर ड्रॉ करो. ए डैश लोकेट करो, रोलर ड्रॉ करो. और फाइनली सी डैश और 0 डैश तो हमारा यही है, तो हमारा जो नेक्स्ट रोलर है वो एग्जैक्टली यहीं आएगा, राइट. रोलर्स एक दूसरे के ऊपर अगर जा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एन इशू, वो होता है, राइट. उसके बाद सिंस हमने रोलर्स ड्रॉ कर लिए हैं तो अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक कर्व ड्रॉ कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बेस, इस बेस से और टचिंग ईच सर्कल, ईच रोलर एट बेस एट सम पॉइंट.
एक कर्व ऐसा ड्रॉ कीजिए कि आप हर एक सर्कल को बेस पे टच कर रहा हो, राइट। सो हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, कुछ यहां तक आएगा, राइट। अब यहां से तो यहां तक दैट इज 45 डिग्री तो हमारा ड्वेल है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम ओ पॉइंट के ऊपर, मतलब सर्कल के सेंटर के ऊपर एक पॉइंट रख के उसके बाद यहां तक का रेडियस लेंगे और इन्हें हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। इट शोज दैट इट इज इन ड्वेल पोजिशन, और ये हमारा ड्वेल है। सिंस हमारा रिटर्न स्ट्रोक यहाँ कंप्लीट हुआ था, ये हमारा ड्वेल है, राइट। सो दिस डायग्राम इज नाउ कंप्लीट एंड दिस इज योर फाइनल कैम प्रोफाइल डायग्राम। तो ये जो है इस कर्व को थोड़ा डार्क कीजिए, बाकी जो सब कुछ आपने सब कुछ ड्रॉ किया है इन्हें थोड़ा लाइट ड्रॉ करना, राइट। सो दिस पॉइंट हैज टू बी जॉइंड। दिस इज द कंप्लीट कैम प्रोफाइल। ये हमारा बेस सर्कल के ऊपर रहेगा, राइट। ओके, सो दिस कर्व इज एक्चुअल कैम प्रोफाइल। और ये जो पूरा डायग्राम है दिस इज कैम प्रोफाइल डायग्राम। So here we complete our profile of the cam. Thank you.